گورنر سندھ نے حادثات میں بڑھتی ہلاکتوں پر شہریوں سے رائے مانگ لی۔ کامران ٹھسوری بولے ڈمپرز سے ہلاکتوں کا معاملہ تھم نہیں رہا۔ سندھ ہائی کورٹ اور وزیر اعلیٰ کو حادثات پر خطوط لکھ چکا ہوں۔ کراچی میں گیس لوڈ شیڈنگ پر وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بااثر افراد کی بدمعاشی نہیں چلنے دوں گا۔ کسی دوسرے صوبے کا بااثر آدمی میرے شہر پر تشدد نہیں کر سکے گا۔ رہنے والے چاہے کسی بھی قومیت کے ہوں، کسی بھی زبان بولنے والے کے ہوں، انہوں نے جسے میں قاتل ڈمپر کہتا ہوں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلے اس شہر میں دہشت گردی ہوتی تھی، اب یہ جو ٹریفک گردی ہو رہی ہے یہ ابھی تک جاری و ساری ہے، جبکہ میں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اب تک اس ڈمپر کی زد میں آ کر جو شہید ہو گئے ہیں، میں ان کو شہید کہتا ہوں، کچل گئے ہیں، ان کو ایک ایک پلاٹ جو ہے وہ ہم بلڈر کی جانب سے یہاں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ جو شہادتیں ہیں اور یہ جو لوگ ڈمپر تلے کچلے جا رہے ہیں یہ نہیں چلے گا، اور میں اب آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ سارا کچھ تو کہہ دیا ہے۔ ڈمپر کے آگے آنے کی بھی میں نے بات کی، اس کے بعد مذاق اڑایا گیا، اس کے بعد ڈی آئی جی ٹریفک کو میں نے کہا، پھر میں نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو 2 خط لکھے، پھر میں نے ایک خط چیف منسٹر سندھ کو لکھا کہ اس پر کمیشن بنائے۔ لیکن کل بھی پھر واقعہ ہوا، ایک شخص جان سے چلا گیا، پہلے روزے پہ چلا گیا، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو اس پر پھر کیا کیا جائے؟ مطلب عوامی عدالت لگائی جائے، لوگوں کو پھر میں گورنر ہاؤس بلاؤں، یا میں کیا کروں؟ مطلب میں پھر یہ آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ مجھے میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ رائے دیں کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ مطلب یہ سلسلہ نہیں رک رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھنے والا ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو، ہزارے وال ہو، گلگتی ہو، بلدی ہو، مطلب جو شہر کراچی پورے پاکستان کو معیشت چلانے میں مدد دیتا ہے، اس شہر کے لوگوں کو اس طرح سے کچلا اور روندا جا رہا ہے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ میں ضرور آپ لوگوں سے آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا۔ ویلکم بیک، اور اب آپ کو بتائیں کہ ناجائز منافع خوروں کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا۔ رمضان کے دوسرے دن 198 منافع خوروں پر کل 68 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں رمضان المبارک میں ناجائز منافع خوروں کے خلاف انتظامیہ کے ایکشن کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں تمام ڈیپٹی کمشنرز، ایڈیشنل کمشنرز کراچی، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ ڈیپٹی کمشنرز نے کمشنر کو اپنے اپنے اضلاع میں کی جانے والی کارروائیوں کے بارے میں آگاہ کیا اور بتایا کہ رمضان کے دوسرے دن 198 منافع خوروں پر کل 68 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا۔ سرکاری قیمتوں کی خلاف ورزی کرنے والے 24 افراد کو گرفتار اور 19 دکانیں سیل کی گئی۔ کمشنر کراچی حسن نقوی نے ڈپٹی کمشنرز سرکاری قیمتوں پر اشیاء کی فروخت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ شہر میں منافع خوروں کی شامت آ گئی۔ معاون خصوصی عثمان ہنگورو کا ٹیم کے ہمراہ دہلی کالونی میں چھاپا، متعدد دکانداروں کو جرمانہ، کئی کے خلاف کارروائی بھی کی گئی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت نے منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی۔ دہلی کالونی میں چھاپا، چالان اور گرفتاریاں۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی عثمان ہنگورو کی سربراہی میں دہلی کالونی میں کارروائیاں کی گئیں۔ کئی مقامات پر پھلوں، سبزیوں اور گوشت کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا، جبکہ کمشنر کراچی کی فہرستیں بھی آویزاں نہیں تھیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سول لائن جنید عالم کے مطابق کارروائی کے دوران کئی دکانداروں کو جرمانہ تھمایا گیا۔ دہلی کالونی ہے جی، یہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، یہاں پہ پہلے بھی روٹین میں ہماری کارروائیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے تو ہم زیادہ ایکٹیولی، زیادہ فورس کے ساتھ یہاں پہ ہیں، اور ہمیں کمشنر صاحب کی ڈائریکشنز ہے کہ جو بھی میجر مارکیٹس ہیں وہاں 2 گھنٹے جا کے ہم نے پرماننٹلی اسٹیشن کرنا ہے اپنے آپ کو، اور جو بھی کمپلینٹ ہوگی اس پہ فوراً عمل ہوگا۔ جس طرح آج آپ کے سامنے ہی کمپلینٹ آئی ہمارے پاس، تو ہم نے ایک بندہ بھی اریسٹ کر لیا اور میں ابھی 20,000 کا جرمانہ بھی کر رہا ہوں۔ معاون خصوصی عثمان ہنگورو نے بتایا کہ وہ روزانہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے۔ پورے کراچی میں ڈسٹرکٹ بھی بنا دیا ہم نے، بیرو والوں نے، بیرو والے کے ذمہ داران یہاں کھڑے ہیں سب ہمارے ساتھ، اور پورے کراچی میں کریں گے انشاءاللہ، پوری کوشش کریں گے، کیونکہ آج ہماری میٹنگ تھی، چیف منسٹر صاحب نے، چیف سیکرٹری نے کھلے عام کہا ہوا ہے کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑو، کوئی بھی ہو،
कितना भी ताकतवर हो, किसी को छोड़ना नहीं है। शहरियों ने बताया कि मुर्गी का गोश्त 600 रुपए फी किलोग्राम के बजाय 850 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा था। केले 150 रुपए फी दर्जन के बजाय 250 रुपए फी दर्जन फरोख्त किया जा रहा है। तो मैंने बताया कि 650 रुपये का नरखनामा है, उसमें लिखा हुआ है, बाकायदा कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, तो कह रहे जाकर कमिश्नर साहब से ले लो, ये हमारे पास नहीं है। शहरियों ने बताया कि अक्सर दुकानदार कमिश्नर कराची की फहरिस्त आवेजा करने के बजाय इसे छुपा देते हैं और सरकारी निर्खों पर कहीं भी अमल नहीं हो रहा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। इंतजामिया के दावे धरे रह गए। सुबह से शाम हो गई मगर असिस्टेंट कमिश्नर लियारी की ज़ेर निगरानी सस्ती शक्कर फराहम करने वाले स्टॉल पर चीनी ना पहुंच सकी। रियायती निर्खों पर चीनी के हसूल के लिए आने वाले मायूस लौट गए। तफसील रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। शहरियों को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश नाकाम। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार हबीब की जेर निगरानी सुबह सवेरे सस्ती चीनी के लिए स्टॉल लगाया गया मगर निस्फ दिन गुजर जाने के बावजूद स्टॉल पर चीनी ना पहुंच सकी। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी, उनका अमला और आवाम चीनी की आमद के मुंतजिर रहे और मायूस लौट गए। सुबह 10 बजे हमारे साथ और पड़ोसी भी आया था। हम चीनी के इंतजार पे 130 रुपए किलो चाहिए। ये दुकान अभी 2-2:30-3 बज गया, अभी चीनी नहीं आया, अभी तक भी चीनी आया। शहरियों को स्टॉल से 130 रुपए किलोग्राम चीनी फराहम की जानी थी। शहरी बोले 30 रुपए की बचत के लिए पूरे दिन की मजदूरी की कुर्बानी दी मगर सस्ती चीनी ना मिल सकी। सुबह से लेके अब तक चीनी का नाम और निशान नहीं है। लोग रोजेदार हैं, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर अवामुल नास को तुम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो ये कोई तरीक़ेकार तो नहीं बा। इंतजामी गफलत के बायस रोजे की हालत में शहरियों की बचत की कोशिश उल्टी परेशानी का सबब बन गई। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची इंतजामिया की कार्रवाइयाँ सिर्फ नुमाइशी। होलसेल मार्केट में चीनी मजीद 4 रुपए महंगी कर दी गई। शहरी कहते हैं इंतजामिया सिर्फ ठेले वालों पर जुर्माना करती है। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। काबिश मेमन की रिपोर्ट देखिए। चीनी की मिठास में रुकावट। रमजानुल मुबारक में भी मुनाफाखोर बाज न आए। होलसेल मार्केट में चीनी फिर महंगी कर दी गई। मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 157 रुपए किलो तक पहुँच गई। शहरी कहते हैं इंतजामिया सिर्फ ठेले वालों पर जुर्माना करती है। मिडिल मैन और बड़े मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तब ही कीमतों को कंट्रोल किया जा सकेगा। उनको पकड़ा जाता है। अगर पकड़ना है तो, अगर ऑपरेशन करना है तो मंडी में करे, जाके उनके साथ करे जो बीच में इनका मिड मैन है, जो सबसे पहले जो कर रहा है कपड़ा। बाकी देखते हैं आगे कल चल के क्या होता है। अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए। भाई इनके अपने मिलें चल रहे हैं, ये तो महंगा बेचेंगे ना, ये सबके इनके अपने मिलेंगे। सीजन है। हाँ, देखो ना चीनी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कराची इंतजामिया ने रमजान के पहले रोज गिराफरोशों पर 15,87,000 रुपए जुर्माना आयद किया। 14 गिराफरोशों को गिरफ्तार और 18 दुकानें सील करने का दावा किया है। ताहम इसके बावजूद शहरी मुनाफाखोरों के हाथों पिस रहे हैं। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कमिश्नर कराची ने आटे की सरकारी कीमतों का ऐलान कर दिया। चक्की की आटे की सरकारी रिटेल कीमत 100 रुपए किलो मुकर्रर की गई। शहरी कहते हैं सरकारी कीमतों पर अमल हो रहा है और ना ही सस्ता आटा दस्तयाब है। दुकानदार कहते हैं सरकारी कीमतों पर आटे की फराहमी मुमकिन नहीं है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। कमिश्नर कराची की जानिब से रमजान और मुबारक में सरकारी आटे की फराहमी ख्वाब बन गई। 2.5 नंबर आटे की सरकारी कीमत 87, फाइन आटा 92 और चक्की का आटा 100 रुपए किलो मुकर्रर। कमिश्नर कराची के सरकारी रेट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, लेकिन ताहाल इस पर अमल दरामद न हो सका। ये कहते हैं हुकूमतें कीमतें मुकर्रर करके अपनी जान छुड़ा लेती है, लेकिन इस पर अमल दरामद कौन कराएगा। वो इस सिलसिले में मिलेगा कि अगर ये ग्रोवर के लिए फर्टिलाइजर जो है वो चीप रेट के ऊपर दें, इसके जो सीड्स हैं वो कम रेट के ऊपर दें, और इसके अलावा जो तेल की प्राइसेस हैं वो रिड्यूस करें। उधर दुकानदारों ने सरकारी नर्ख पर आटे की फराहमी नामुमकिन करार दे दी। बोले जिला इंतजामिया हकाइक को मद्देनजर रखते हुए कीमतों का तयन करे। ओपन मार्केट में गंदम 88 रुपए किलो में फराहम की जाती है, जिसके बाद अखराजात भी होते हैं, तो ऐसे में सरकारी कीमतों पर आटा कैसे फरोख्त करें। अमल दरामद उसी वक्त मुमकिन था कि अगर उस हिसाब से गंदम होलसेल मार्केट में दस्तयाब हो। अगर गंदम का रेट इस वक्त 84-85 रुपये हो और उस पर केजी 30 से 35 रुपये का ख़र्चा आता हो, तो वो मुमकिन नहीं है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि जहां आप आवाम के लिए सोच रहे हैं कि रमज़ान में रिलीफ मिलना चाहिए, तो वहीं हम भी कहते हैं कि हम भी तो आवाम हैं।
शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से रमजान मुबारक में सस्ती अशिया खुरोनोश की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कोऑपरेटिव मार्केट में 180 दुकानें बगैर मीटर के कुंडे पर चलने का इंकशाफ हुआ है। मार्केट के जनरल सेक्रेटरी असलम खान ने एतराफ़ कर लिया कि इलेक्ट्रिक ने असलम खान पर भी बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए 10 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कुंडा माफिया मार्केटों तक जा पहुंचा। कोऑपरेटिव मार्केट में 180 दुकानें कुंडे पर चलने का इंकशाफ। मार्केट के जनरल सेक्रेटरी पर 20 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। जनरल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मार्केट असलम खान का कहना था कि अगर उनके मीटर पर बिजली चोरी हुई है तो के इलेक्ट्रिक साबित करे। के इलेक्ट्रिक ने बिजली मुनक़दा की तो रोड बंद करके एहतजाज करेंगे। फिल फौर जुर्माना वापस लिया जाए। कितनी मरतबा हम कुंडे कटवाते हैं, पर आपकी सरबरस्ती में कुंडे फिर लग जाते हैं। कैसे लग सकते हैं यार, ऐसा हो सकता है? और फिर आप सर्वे के लिए जब आए हैं तो सदर कोऑपरेटिव मार्केट का जो सेक्रेटरी के नाम मीटर है उसमें मुझे ये बताइए कि कहाँ कुंडा लगा हुआ था, आप साबित करते हैं। तो अगर मेरा इन्होंने मीटर बंद किया, डिस्कनेक्ट किया, तो इस पर तो फिर दमादम मस्कलंदर होगा। मैं रोड भी बंद करूँगा, तमाम कराची के ताजिरों को भी साथ बुला के एहतजाजी धरना दूंगा रोड पर। असलम खान बोले कि 2004 के बाद 180 दुकानें बनी मगर ठेकेदार ने बिजली के मीटर्स नहीं दिए। के इलेक्ट्रिक की मिली भगत से मार्केट में कुंडे चल रहे हैं। हम दुकानदारों को मुतनब्बा करते हैं कुंडे ना लगाए जाएं। 180 जो इनकम्प्लीट दुकानें हमें दी हैं वो बगैर मीटर के साथ दी हैं। जाहिर सी बात है इलीगल तौर पे कहाँ से लिए, वो के इलेक्ट्रिक ने दिए होंगे। के इलेक्ट्रिक की सरपरस्ती में उसके बगैर तो नहीं चल सकते कुंडे। हाँ, हम तो मुतालबा करते हैं कि इलेक्ट्रिक से भी और कामे वाला से भी कि हमें 180 जो दुकानें दी गई उनके मीटर भी दिए जाएं। जब मीटर होगा तो हम उसको पाबंदी के साथ सबको पाबंद करेंगे। और हम बार बार सबको मुतनब्बे करते हैं कि कुंडा कोई नहीं चलेगा, कोई कुंडा नहीं चलने देंगे। मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि के इलेक्ट्रिक गैर कानूनी कुंडे खत्म करे, मुकम्मल ताउन किया जाएगा। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 10 मार्च को तलब कर लिया गया। टॉप लाइन सिक्योरिटी रिसर्च ने मार्केट सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। ज़्यादातर राय में शरह सूद बरकरार रहने की तवक्को है। 37% की राय में शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी मुतवक्के है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मजीद टैक्सेस लगने से महंगाई में इजाफे का खदशा माहिरीन ने खबरदार कर दिया। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 10 मार्च 2025 को होगा। टॉप लाइन सिक्योरिटी रिसर्च ने मार्केट सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। मार्केट सर्वे में ज्यादातर की राय में शरह सूद बरकरार रहने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक 38% की राय में शरह सूद 12% पर बरकरार रहेगा। 37% की राय में शरह सूद 100 बेसिस पॉइंट्स कम हो सकता है। 20% का मानना है कि शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी हो सकती है, जबकि 5% की राय में शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स कमी हो सकती है। मार्केट सर्वे के मुख्तलिफ वजूहात पर शरह सूद बरकरार रखने की तवक्को की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक IMF का जायजा मार्च के पहले हफ्ते में होगा, जिसमें नए रेवेन्यू हदफ और बजट खसारे को पूरा करने के लिए प्लान मांगा जाएगा। सर्वे में माहिरीन ने कहा कि अगर मजीद टैक्स लगे तो महंगाई की रफ्तार बढ़ने की खदशात हैं। ये भी कहा कि गुज़िश्ता 2 माह में दरामदी बिल 10 अरब 50 करोड़ डॉलर पर जा पहुंचा है और नवंबर 2024 से अब तक इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 2 रुपए महंगा हो चुका है। साथ ही पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के बाद 6 माह का कराची इंटर बैंक ऑफर रेट और टी बिल्स का रेट 21 से 24 बेसिस पॉइंट्स बढ़ चुका है, जो इशारा दे रहा है कि शरह सूद में कमी की तवक्कुआत कम है। कराची की सड़कों पर इफ्तार का रूहानी मंजर। इफ्तार के लम्हात मजहबी जोशो जज्बे से अरूज पर। छपा की जानिब से शहर भर में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम जारी। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ग्रैंड इफ्तार का अहतमाम, जहाँ बड़ी तादाद में रोज़ेदारों ने इफ्तारी की है। आपको बताएं कि छपा की जानिब से शहर भर में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम जारी। इसी पर बात करेंगे राहील बेग से। जी राहील, बताइएगा। कराची की सड़कों पर इफ्तार का समा एक रूहानी जोशो जज्बे से भरपूर लम्हा जब रोज़ादार इफ्तार करने के लिए जोक दर जोक सड़कों पर आते हैं। ये लम्हा सिर्फ खाने पीने का नहीं होता, बल्कि ये एक रूहानी और मजहबी मंजर की अक्कासी करता है, जिसमें इंसानियत की खिदमत, मोहब्बत और भाईचारा अरूज पर होता है। जानिब से कराची में हर साल ग्रैंड इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। इफ्तार में हजारों रोज़ादार मर्द, खवातीन, बूढ़े और बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर अल्लाह के रास्ते में अपने रोजे की तकमील करते हैं।
छिपा के रजाकार जो दिलो जान से इस अमल में शरीक होते हैं, अफ्तार की तैयारी से लेकर रोजादारों तक खाना पहुंचाने तक अपनी खिदमत फराहम करते हैं। एक दस्तरखान होता है जो लोगों को आपस में इकट्ठा करता है, जिससे लोग सैर व अफ्तार का लुत्फ़ लेते हैं और उसके बाद नमाजें। और हमारे छिपा दस्तरखान पर 1 लाख अफराद से ज़ायद का दस्तरखान लगता है, जिसमें इफ्तार में और शहरी में 1 लाख अफराद से ज़ायद का इंतज़ाम होता है। हमारे यहाँ जो है जिस तरह प्यार और मोहब्बत से इनको दस्तरखान सर्व किया जाता है, इफ्तारी में बीफ बिरयानी होती है, ज़रदा होता है, जलेबी होती है, समोसे पकौड़े होते हैं, क्रीम चाट होती है। इस तरह इनकी खिदमत में रोज़ाना इस तरह के लवाजमात जो है अच्छे पेश किए जाते हैं। कराची की सड़कों पर अफ्तार का ये मंजर न सिर्फ एक मजहबी इबादत का हिस्सा होता है, बल्कि ये एक जिंदा मिसाल है कि किस तरह इस शहर के लोग इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे की मदद करते हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ राहिल बेग, सिटी 21। माह रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम तर रहमतों बरकतों के साथ जारी है। सहरो इफ्तार पर पुरकैफ मनाज़र माह मुक़द्दस की बरकतों को चार चांद लगा रहे हैं। यूनिटी NGO की टीम रोज़ेदारों की खिदमत में पेश गुज़श्ता कई बरसों से मेरी टीम गोरा कब्रिस्तान पर रोज़ा इफ्तार करवाती है। सरबराह अब्दुल्ला बदर कहते हैं कि जब तक अल्लाह ने तौफीक दी इस तरह इफ्तार करवाएंगे। की साअत अखुवत भाईचारगी की फ़िज़ा कायम, इज्तिमाई सहरो अफ्तार की पुरकैफ मनाज़िर। रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही शहर के कई मकामात पर सहर और अफ्तार के इंतजामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। इज्तिमाई सहरो अफ्तार मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की फ़िज़ा को परवान चढ़ाता है। यूनिटी टीम के सरबराह अब्दुल्ला बदर कहते हैं कि मुख़य्यर हज़रात के ताउन से इंतजामात हो जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ादारों की खिदमत में पेश हैं। हज़रत जब तक मैं जिंदा हूँ मैंने तो यहाँ पे अफ्तारी करवानी है। उसके बाद मैंने अपने भाइयों को बोला हुआ है कि भाई जब तक हम लोग हैं अफ्तारी यहाँ पे करवानी है। तो बस ये एक हमारा जज्बा है कि बस आसान नहीं घर से बाहर निकल के अपना रोज़ा छोड़ना और अफ्तार यहाँ पे करवाना, लेकिन हम लोग करवाते हैं। अब्दुल्ला बदर के मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों से मुझ समेत पूरी टीम रमज़ानुल मुबारक के मौके पर गोरा कब्रिस्तान पर रोज़दारों के लिए इफ्तार का एहतमाम करती है। 4 से 5 अफराद पर मुश्तमिल टीम रोज़ादारों के लिए गुज़िश्ता कई सालों से इफ्तार का बंदोबस्त कर रही है। राव अब्दुल्ला बदर का मजीद कहना था कि जब तक जिंदा हूँ अपनी टीम के हमरा इसी तरह अफ्तारी करवाता रहूँगा। गरीबों मिस्कीनों की मदद और उनकी दादरसी यही माह सयाम का दर्स है। कैमरामैन जानशेर बलूच के हमरा मुबश्शिर हुसैन, सिटी 21। माह रमज़ान आते ही तरबूज मार्केट में आ गया। तरबूज के बेशुमार तिब्बी फ़वाइद भी हैं। इसे इफ्तारी का हिस्सा बनाने से ना सिर्फ जिस्म में तवानाई बहाल होती है बल्कि कई तरह के तिब्बी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट में।